વધુ ચર્ચા કરી આપણી સાથે અપડેટેડ સર્વિસીસના CMD रघु तांगीराला जोड़ा रहा है। रघु जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। एंड जानना चाहेंगे कंपनी के बारे में थोड़ा सा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है आपका। एंड जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 2 अलग अलग प्रकार के सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो थोड़ा सा समझाइए ये दोनों के बारे में। एंड थोड़ा सा हिस्ट्री, कंपनी क्या करती है और कब से हमने कामकाज शुरू किया, उसके साथ चर्चा की शुरुआत करें सर। Thank you for having me. Good afternoon. I will stick to English because my Hindi isn't great. नो So प्रॉब्लम I'll सर। quickly give you on Updata Services is integrated facilities management services company. Along with it, we have other business services, B2B business services. Basically, integrated facilities management is managing large facilities in terms of hard services, soft services, engineering support, and the entire maintenance of a facility. That's the core business of IFM. We call it integrated facilities management. Then we have business support services, which is again B2B, which is we have employee background verification, we have audit and assurance, which is basically supply chain audit. Then we have a sales enablement piece. Largely, this is what the two verticals of the business is. Okay, sir. So what I would like to understand is that there is an OFS in which the promoters are selling the stake, and their holding will continue to decline. And we have a fresh issue also. So we would like to know is that आप क्या यूज़ करेंगे इस फंड का जो फ्रेश इश्यू से आप कलेक्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या योजना रहेगी इस कैश को लेकर आपके? Okay, good you asked me. See, the OFS is the promoting shareholders and the investors are exiting half of it. So after the issue, the promoters, which is will still hold about 60%. Now the primary issue is about 400 crores. Out of 400 crores, about 130 crores roughly will go for retiring debt. About 110 crores for augmented working capital, that is future working capital. 80 crores in the blind pool for inorganic growth, and around 70 crores for general purpose. However, the company is still debt-free. I mean, net debt is about 10 crores. So after the issue, it would be a cash surplus. So that's what roughly it looks like. Okay, and what kind of usage are you thinking for with this cash? Are you looking for some new acquisitions? Because we have seen in lastly, you have seen so many acquisitions, Matrix, Avon, Denave, and Athena also is there. So you are looking for more opportunities to acquire organic, inorganic growth के लिए? Of course, we'll look at inorganic, but only in the business services space, not in the facilities management space. So Okay. that would be the strategy. But we don't have a target today, but definitely we will have this inorganic growth. फाइन सर। सो रघु सर, अब हमें समझाइए कि ये जो दोनों हमारे टाइप ऑफ बिजनेसेस है, IFM एंड BSS, किस प्रकार के मार्जिन्स यहाँ पर होते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट देर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन BSS. द ग्रोथ इज रियली गुड. सो prospect is going forward with the same. Raghu, See, if you want, I can take that. please, Amitabh. या Sure. सो ये एक्चुअली आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, थैंक जी। यू वेरी मच। इसमें IFM की जो मार्जिन्स होती हैं ये नॉर्मली स्केल रिलेटेड होती हैं, कि जितनी बड़ी कंपनी होती है उसकी मार्जिन थोड़ी और अच्छी हो जाती हैं। तो हमारी मार्जिन इसमें 5 से 6% के आसपास रहती हैं इस सेगमेंट में। और जो BSS सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट की मार्जिन्स काफी और बेटर होती हैं, एंड इसकी जो मार्जिन्स टिपिकली जो होती हैं वो 10% के ऊपर की होती हैं। हमारी जो ब्लेंडेड मार्जिन है जो हमने आपको दिखाई है वो 7% है, जो इस इंडस्ट्री की लीडिंग मार्जिन। तो ये मार्जिन्स की हुई बात। दूसरी चीज जो है वो एक ये ध्यान रखने की है कि ये इस कंपनी के जो बिजनेस मिक्स है IFM और BSS मिला के, वो इस तरह का मिक्स है कि हमारा जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, 2700 कस्टमर हैं, उनको हम अलग अलग तरह की सर्विसेज मुहैया करा सकते हैं। सो दैट गिव्स द कंपनी अ ह्यूज एडवांटेज, व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई वी आर ग्रोइंग सो वेल।
ओके सो मैं आपका भी इंट्रोडक्शन सर करा दूं। ये हैं अमिताभ जयपुरिया सर, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अपडेटर सर्विसेज को लेकर। सो सर आपसे भी ज़रूर बातचीत रहेगी हमारी, पर एक साथ ही साथ सर ये चीज़ भी समझना चाहेंगे कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार के, कौन से इंडस्ट्रीज़ को हम कैटर करते हैं, अगर हम समझ पाएँ सर। रघु जी आप से ये सवाल। You want me to answer, sir? Yes, sir, Yeah, he's please. asking you. Okay. You see, we are across all these segments. We have infrastructure segment basically at airports, metros, that kind of segment. We have IT and ITSS. We have hospitality. We have healthcare, we have manufacturing. So we are across all segments because facilities management is something which is required in any business. ओके डेफिनेटली। अच्छा अमिताभ जी, एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम ये सारे क्लाइंट्स वगैरह को हम हैंडल करते हैं, इसमें किस प्रकार का रिटेंशन रहता है? एक बार कोई क्लाइंट अगर आपके साथ जुड़ता है तो आपने क्या देखा है, हिस्ट्री क्या कहती है, और कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डील ऑर्डर वगैरह जो होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सके तो। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए, हमारी जो कंपनी है 35 साल पुरानी कंपनी है, 1990 में स्टार्ट हुई थी। और हमारे कई सारे कस्टमर्स जो हैं वो इस तरह के हैं जिनसे हम 20 साल के ऊपर से बिजनेस कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिनसे 10 साल या 5 साल के ऊपर से बिजनेस करते हैं। टिपिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एनुअल होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 साल के होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और लंबे होते हैं, 5 या 7 साल के। लेकिन एयरपोर्ट्स ग्राउंड हैंडलिंग के जो बिजनेस है उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 10-10 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंसेशंस होते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी एग्जीक्यूशन की स्ट्रेंथ है, और इसके कारण कस्टमर्स हमें जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। और हमारे जो कस्टमर बेस है, 2700 कस्टमर्स की जो बेस है, वो बहुत स्टेबल कस्टमर बेस है। और हमारी जो ग्रोथ भी होती है वो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स काफी सारी ग्रोथ हमें देते हैं, तो एक्स्ट्रा बिजनेस देते हैं। जैसे पहले मान लीजिए अगर कोई एक फैक्ट्री का काम हम कर रहे थे तो आज 2 का करते हैं या 5 का करते हैं। तो इस तरह के कई सारे कस्टमर्स हैं, बड़े कस्टमर्स हैं और बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डेफिनेटली सर। सो इन सब चीज़ों पे नज़र रहेगी। रघु जी, आउट ऑफ इंडिया के कुछ क्लाइंट्स हैं, भारत के क्लाइंट्स हैं, किस प्रकार के इसमें मार्जिन्स का डिफरेंस रहता है? अगर बाहर के कोई क्लाइंट्स हैं या हमारे यहाँ पे हैं, उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। Sir, good you asked me that. See, in the facilities management space, we are not looking anything outside India. We would want to do it in India. It's a pretty large market. However, in the business support services, our sales enablement and the audit and assurance business, like the transactions business, we are doing outside India in many countries. So that is the model in the business support services. And Amitabh, you can actually elaborate on that. या इसमें जैसे रघु ने बताया, आईएफएम बिजनेस जो है वो खाली इंडिया में करते हैं। बीएसएस सर्विसेज में सेल्स एनेबलमेंट सर्विसेज बाहर भी मुहैया कराते हैं, और हमारे 2 सेंटर्स हैं जहां से हम डिलीवरी करते हैं। एक है दिल्ली में, नोएडा में, और दूसरा सेंटर हमारा है मलेशिया में। तो मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी भी है। और हमारी जो डिनेव कंपनी है उसकी 50% रेवेन्यू जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू है। तो ये हम लोग हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। और जो ऑडिट एंड एश्योरेंस बिजनेस है हमारा, उसमें भी हम लोग जो है बाकी कंट्रीज की प्रोसेसिंग इंडिया में करते हैं। लेकिन जो स्केल है वो सेल्स एनेबलमेंट में ज्यादा है और बाकी बिजनेसेस में कम है। तो हम लोग जो कंपनी है वो एक इंडिया सेंट्रिक कंपनी है। हमारा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इतनी फास्ट ग्रो कर रही है और इंडिया में इतनी ग्रोथ पोटेंशियल है कि वी आर फोकसिंग, और हमारा जो फोकस है वो इंडियन मार्केट्स पे है। ठीक है सर, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा जो है वो मार्जिन्स पे रहेगा। अमिताभ जी आपसे ये सवाल रहेगा। बेसिकली हमने देखा है कि एक स्टेडी रेंज में मार्जिन्स रहे हैं। सो एक्सपेंशन को लेकर क्या प्रकार की योजना आपकी रहेगी, या फिर कंपटीशन है, या कैसे देख रहे हैं आप इस मार्जिन की सिचुएशन को? इस कंपनी की मार्जिन्स जो हैं वो अगर आप लास्ट कुछ सालों में देखें तो 2021 के जो मार्जिन्स हैं वो करीब 5% के जस्ट ऊपर थी। आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7% के पास मार्जिन से हैं। तो मार्जिन एक्सपांशन जरूर हुआ है, और ये मार्जिन एक्सपांशन हमारी जो बीएसएस पोर्टफोलियो है, जो बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज की पोर्टफोलियो है, उसके बढ़ते चलते हुआ है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेवरेज आता है, उससे भी मार्जिन इंप्रूव होती हैं। तो ये चलते मार्जिन्स पे फोकस जरूर रहेगा। हमें विश्वास है कि मार्जिन्स इंप्रूव होंगी।
कितनी होती है वो तो हमारे मतलब वो बाजार पे और हमारी एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, बट हमारा मानना है कि ये मार्जिन इंप्रूव होंगे। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों पर नज़र आएगी। रघु जी और अमिताभ जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी दी, और लिस्टिंग के लिए ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। Thank you very much. થેન્ક યુ। તો આપણે વાત કરી આ બહુ જ રસપ્રદ સેવા પૂરી પાડતી કંપની છે અપડેટર સર્વિસીસ। તેમનો ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટની સાથે જોડાયેલો કારોબાર છે અને બિઝનેસ સર્વિસીસ સાથે જોડાયેલો કારોબાર પણ છે, કે જેને લઈને તેઓ જે છે તે ખાસ હવે કામકાજ આપે છે, અને હવે આઈપીઓની બાકી ડિટેલ્સ તો તમારા સ્ક્રીન પર છે જ, નજર આવશે।